Unsaid rivalry between sisters. Assalamu alaikum, Junaid sir. I hope you and your family are doing well. Please don't expose the information written in brackets. I am 20-year-old student who took a gap year and recently retook the MD CAT for MBBS admission. Currently, I am free as I await the start of the admissions process. I have greatly benefited from watching your videos and have learned a lot from them. I am writing to seek your advice on a personal matter involving my elder sister. My elder sister is pursuing a BS in English from ABC, a university, South Punjab, Pakistan, with relatively low competition. She also attempted the MD CAT but was unable to secure enough marks to pursue her dream of BDS. She did not insist on repeating the exam, and I'm unsure of what transpired during that period, which haunts me as I always share everything with her, but she does not. I always believed we had a strong bond, but recent observations have made me question that. Despite her support during my gap year, encouraging me to follow my interests, I have started to have negative thoughts about her. I sense that she may feel guilty because I have to do MBBS despite not having any interest because she couldn't fulfill her own aspiration, leading her to support my medical pursuits. She has an excellent academic record, maintaining straight GPA 4.0 GPA in her third year. However, I feel that her achievements in a less competitive environment may not reflect true excellence. I'm not jealous. I genuinely celebrate her success and try to help her during exams, even taking care of her chores for her. However, she rarely reciprocates. I feel she considers me a failure because of my gap year. I may be a failure right now, but I am working hard to fulfill my parents' dream. My elder brother advises me to ignore her and not do her chores since she is often mean to me after arguments, but I struggle to adopt such behavior towards my own sister. I am not the kind of person who can be rude or speak harshly to anyone, regardless of how they treat me. Personally, I have a soft and accommodating nature, always striving to maintain harmony. However, my sister's behavior has consistently been a challenge. She often comes across as rude and dismissive, frequently playing the victim card to garner sympathy. This pattern is particularly evident when interacting with her parents. In front of her parents, she presents herself as the sole breadwinner, exaggerating her university responsibilities to gain attention and leniency. She implies that only she can have bad days, be tired, or experience stress due to her university commitments, disregarding my own struggles and efforts just because I am home all day. This narrative creates an unfair dynamic, making me feel overlooked and undervalued. I have also noticed that she hides things from me, such as her interest in preparing for CSS exams and watching beneficial videos. Whenever she is watching something useful related to studies or Islam, she simply leaves the room or pauses the video if I enter the room. This secrecy bothers me as it suggests she might think I'm jealous of her success. She has two university friends who seem to know her better than I do, which adds to my concern. Moreover, she doesn't participate in household chores despite being the eldest, hides her personal and academic endeavors from me, is overconfident due to her academic achievements in a relatively low competitive environment, only shows interest in my life when it benefits her or seeks assistance. She behaves well only when she needs her work done by me. I wish to have a healthy relationship with her and encourage her to participate in household chores, which are important life skills. I have tried being supportive and helpful, often going out of my way to assist her. However, her behavior puzzles me. I worry that she perceives me as jealous of her success. I assure you I am genuinely happy for her accomplishments. To strengthen our bond, I'd appreciate your advice on addressing the gap created by her secretive behavior, encouraging her to participate in household responsibilities, managing potential feelings of jealousy or competition, navigating her victim playing behavior. I'm a middle child. Please correct me if it is true that middle child is always taken for granted and undervalued by their siblings. Am I undervalued because of my disability? Given my gentle nature, I struggle to confront or express dissatisfaction. Your guidance on how to approach this situation assertively yet
compassionately would be invaluable. Thank you for considering my concerns. So ये आपने देखा a case of sibling rivalry, और ये it is a real thing यार, बहन भाइयों में भी बड़ी jealousy होती है, और it goes बड़े लंबे अरसे तक भी चलती हैं, and I've witnessed them so many of them very very closely, और इट्स अ रियल थिंग। तो ये सोचना कि नहीं जी बहन भाइयों में वक्ती तौर पे होता है, या इट्स एन एज फैक्टर वगैरह वगैरह, कुछ होते हैं जो कि लाइफ लॉन्ग चलते हैं, और वो यही होता है कि वजह होती है या तो इट इज़ इन्फ्लिक्टेड बाय द फैक्ट कि या तो कोई अचीवमेंट से रिलेटेड होती है, या फिर ये होती है कि पेरेंट्स का बिहेवियर किसी की तरफ कैसा है। सो अगर किसी की तरफ ज़्यादा नरम है तो अगले को फील होता है कि यार ये इसको इतनी फेवर क्यों मिलती है मुझे, तो वो पेरेंट्स का बिहेवियर ब्रीड करता है, या फिर ये कि आपकी अपनी कोई अचीवमेंट या इनसिक्योरिटी वहाँ से भी आती है। अब ये जो केस है दो बहनों का, ये इन्होंने गैप ईयर लिया हुआ है, एमडी कैट की तैयारी कर रही हैं, और जो इनकी बहन है जो कि जिस यूनिवर्सिटी का नाम लिया वो इतनी competitive नहीं है अकॉर्डिंग टू हर, और उसके बावजूद वो बीडीएस में नहीं जा सकी, एंड देन फिर जो आपने बातें सुनी कि घर में काम वाम पे हाथ ना बटाना और सीक्रेटिव होना वगैरह वगैरह। एक तो ये मिडिल चाइल्ड है, मिडिल चाइल्ड का ज़रा ये इशू बिल्कुल रहता है, बड़ों को प्रेफरेंस बहुत मिलती है और छोटों को बहुत मिलती है, और मिडिल वाले तो बस इसलिए होते हैं ताकि बड़ा और छोटा आइडेंटिफाई हो सके, इसलिए मिडिल होता है, राइट। देखिए एक चीज़ तो ये है कि आप असर्टिव होना कोई इतनी बुरी बात नहीं है, इट्स नॉट बदतमीज़ी। हमारे यहाँ ना असल में किसी भी किस्म की चीज़ में अपने अपनी अपनी चीज़ पे स्टैंड लेने को, या अपने अपना कंसर्न वॉइस करने को, या फिर किसी अकाउंटेबिलिटी मांगने को बदतमीज़ी का नाम दे दिया। हर चीज़ बदतमीज़ी के लिबादे में ओढ़ दी है ताकि जो बड़े जो हैं अकाउंटेबिलिटी से भागें। बस हमने एक वतीरा बना दिया कि वो ये तो ज़बान चलती है, इसकी ज़बान दराज है, बदतमीज़ है, क्वेश्चन करती है। लेकिन अब हमें कहीं भी ज़िंदगी के किसी भी पहलू में सवाल करना सिखाया ही नहीं जाता, और ये भी एक बहुत बड़ी वजह है कि हमारे बच्चे क्यूरियस नहीं हैं। जब वो क्यूरियस नहीं हैं तो वो फिर आगे कुछ प्रोड्यूस भी नहीं करेंगे, वो फिर बस जो गधे जिस तरह जा रहे हैं की तरह उसी तरफ चलते रहेंगे, राइट। क्यूरियोसिटी स्कूल में मारी जाती है, मदरसों में मारी जाती है, घर में मारी जाती है, हर जगह मारी जाती है। सवाल नहीं कर सकते आप किसी भी किस्म का, और असर्शन जो है किसी भी किस्म की असर्ट करना, डोमिनेंस को असर्ट करना कोई इतनी बुरी बात नहीं है। वो एक बाउंड्री सेट करने वाली चीज़ है और अकाउंटेबिलिटी वाली चीज़ है। देखिए मैंने जो एक चीज़ ज़िंदगी में सीखी है वो ये है कि अगर दे के नहीं मिल रहा ना तो देना छोड़ दो, राइट। अब वो देना इज्जत भी हो सकता है, वो देना कुछ भी हो सकता है, कोई फिजिकल चीज़ भी हो सकती है, आ, कोई चोट, जिस तरह आपने कहा कि आप घर के काम कर लेती हैं, ये चीज़ें कर लेती हैं, हेल्प करती हैं उनके एग्ज़ाम के दिनों में, उनका ख्याल रखती हैं वगैरह वगैरह। तो अगर आपको देने से नहीं मिल रही ना तो आप विड्रॉ कर लें, और आप चीज़ें विड्रॉ कर लें, और फिर देखें फिर अगला जो है ना वो फिर कंफ्यूज होता है कि यार ओह शिट, देयर इज नो वन इन द रूम। अब ये क्रीकिंग तो हो रही थी, अभी ये बैग कहाँ से गिरा, देयर इज नो विंड, अब मेरा दिमाग इस पे ही रहेगा। एनीवे अल्लाह मालिक है। सो मैं क्या कह रहा था, गूज बम्स खड़े हो गए मेरे अब गूज बम्स खड़े हो गए। तो एजर्शन जो है वो बड़ी ज़रूरी है, बाउंड्री सेट करनी चाहिए, और विड्रॉ कर लें, और बिल्कुल ही नॉन शैलेंट हो जाएं। कि एक होता है ना लव और हेट, और एक होता है इंडिफरेंस, इनडिफरेंट हो जाए कि आपको फील ही नहीं हो रहा, आप अगले की प्रेजेंस को बिल्कुल ही ऐसा करें कि अगला मौजूद ही नहीं है, उसको बिल्कुल एब्सेंट कर दें कि वो सामने एग्जिस्ट ही नहीं करता, एंड यू जस्ट इग्नोर, और अपने काम से काम रखें, यू डू योर ओन थिंग्स, और आप बाउंड्री सेट करें और सीधा सीधा वॉइस कर दें एक बार कि भाई ये चीज़ें हैं, दिस इज हाउ इट्स गोना बी फ्रॉम नाउ ऑन। आप बड़ी हैं, मैं आपकी इज्जत करती हूँ सारी चीज़ें, बट जस्ट बिकॉज यूर बड़ी डजंट मीन यू वॉन्ट बी स्टूपिड, राइट। स्टूपिड लोग भी बड़े होते हैं। तो विड्रॉ कर लें और फिर देखें उनका बिहेवियर किस तरफ जाता है, और फिर उनको शायद रियलाइज़ होने लगे कि यार ये तो बड़े मेरे काम भी करती थी वगैरह 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 वगैरह, राइट। तो अगर उससे भी ना सीखे, उससे और रिटेलिएशन बढ़े, तो बट ठीक है, फिर इट इज़ वॉर इट इज़, देन इट्स एन एक्ट ऑफ वॉर। फिर अगर वहाँ से वॉर हो रही है तो फिर यहाँ से भी वॉर होगी। पेरेंट्स को इन्वॉल्व करें, उनको बताएं,
मगर ऐसे केसेस में ज़्यादातर ना पेरेंट्स रफा दफा करते हैं, अरे तुम बहन बहन ही तो है, इसका ख्याल रखो, बड़ी है, ये है वो है करके टाल देते हैं। पेरेंट्स भी हमारे यहाँ जो है ना, बिकॉज उन्होंने कभी खुद किसी की अकाउंटेबिलिटी की नहीं होती, तो किसी की करना जानते भी नहीं है, या वो मीडिएट नहीं कर पाते चीज़ों को, बिकॉज वो उस प्रोसेस से नहीं गुजरे। वो सिर्फ डर, खौफ, चुप करो, चुप करके बैठो, कमरे में जाओ, इससे आगे की दुनिया उन्होंने कभी देखी नहीं, तो वो उनको ये लैंग्वेज वैसे ही समझ नहीं आती। तो ये तो एक चैलेंज रहता है देसी फैमिली में। तो मैं आपको फिर यही कहूँगा कि जैसे आपने मुझे ये सवाल किया ना कि नेविगेट किस तरह करूँ, स्ट्रेंथन और बॉन्ड, देखें बॉन्ड में फिर यही है कि आप अगर इस तरह लगी रहें, वही वाली बात है ना कि जब बगैर कुछ किए आप हाउस होल्ड चोर्स भी कर रही हैं, उनका ख्याल भी रख रही हैं, तो उनके अंदर एक सॉर्ट ऑफ इंटाइटलमेंट आ गई है कि ये तो मेरी नौकर है, तो मेरे काम भी करेगी, सब कुछ करेगी, और मैं एटीट्यूड देखूंगा। अच्छा, रही बात ये कि आप कमरे में घुसती हैं, वो वीडियोस बंद कर देती हैं, दैट्स फाइन, कोशिश करें नॉक करके घुसे। एक हमारा ये मुझे नहीं पता, अब आप ऐसी ट्रेन की तरह निकल जाती हैं, आप नॉक करके जाती हैं, तो कोशिश करें आप भी थोड़ा सा इसमें इजाफा करें, चीज़ में थोड़ा मैनरिज्म्स के ऊपर ध्यान दें, और अगर वो सीक्रेटिव होती हैं तो उनको होने दें। आपको ये बॉदर क्यों कर रही हैं चीज़ें? अगर वो कोई इस्लामिक लेक्चर सुन रही हैं और आपको देख के बंद कर दिया, तो मतलब आप क्या उसमें, या कोई फिल्म देख रही हैं, या कोई नेटफ्लिक्स देख रही हैं, इट्स ओके, यू जस्ट माइंड योर ओन बिजनेस एंड अज्यूम शी इज़ नॉट देयर, यू जस्ट डू योर ओन थिंग, वो खुद ही आ जाएंगी। तो अगर जिस तरह आपने कहा कि बॉन्ड अगर खिदमत करके नहीं बन रहा, तो विड्रॉ करके देख लें, फिर उनको शायद एहसास होगा, ख्याल होगा कि हाँ नहीं यार, ये तो मेरा गलत है। वो भी अगर अल्लाह ने उनको तौफीक दी या उनको समझ आया तो शायद, वरना बहुत सारे लोग होते हैं वो नहीं होते, जब नहीं होते तो फिर ठीक है। देखिए, हमेशा रेसिप्रोकेट करना सीखें, जो मिल रहा है मिरर बन जाए, बिल्कुल मिरर करना सीखें लोगों को, कि भाई अगर वो आपके साथ इस तरह, तो आप भी उसी के साथ ऐसे ही होके जाए, फिर अगलों को फील होता है। इसमें ये नहीं है कि जी मैं उनके लेवल पे नहीं जा सकती, ये नहीं होता, कुछ लोगों को उनके लेवल पे ही जाके समझाना होता है, उनको वो शफ़क़त से, या बीइंग अ बिगर पर्सन, उनको ये चीज़ें समझ नहीं आती। वो कहते हैं ना, कुछ लोग इज़्ज़त रास नहीं होती, वो ऐसे ही लोग होते हैं। तो आप थोड़ा-सा विथड्रॉ करें चीज़ों को। सीक्रेटिव बिहेवियर जो है, अब वो, अब आई डोंट नो सीक्रेटिव क्यों है, बॉयफ्रेंड से बात कर रही हैं, किससे कर रही हैं, क्या कर रही हैं, अगेन दैट्स हर प्राइवेसी, वो फिर आप उसको उतना ध्यान ना दें। इनकरेजिंग हर टू पार्टिसिपेट इन हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, उसमें आप ये करें कि आपके अपने जो काम है आप वो करें। फॉर एग्जांपल, अगर बर्तन है, राइट, उनके भी हैं आपके भी हैं, आप अपने धो के साइड पे चली जाएं, ख़त्म बात, उनको अपने खुद करने दें। या अगर कपड़े धोने वाला सीन है, वो आप सारे कर रही हैं, तो आप उनके सारे फ़िल्टर आउट करें। बोले भाई यू आर एन एडल्ट, तो आप खुद कर सकती हैं ना, मैं भी तो कर ही रही हूँ, तो आप अपना करें। तो हर चीज़ अलग कर दें ताकि उनको नज़र आए, तो फिर उनको फिर एहसास भी हो। फिर अब वो आएंगी कि अच्छा एक काम करो, बारियाँ बना लेते हैं, कि मैं मंगल बुध को मैं कर लूँगी, जुमेरात जुम्मा तुम कर लेना। देखें अगर वो भी आ जाती हैं वहाँ तक। पोटेंशियल फीलिंग्स ऑफ जेलसी और कंपटीशन, देखें अब ये यू ऑल्सो नीड टू इंट्रोस्पेक्ट कि कहीं इनसिक्योरिटी आपके अंदर भी तो नहीं है, कि आप को लग रहा है कि वहाँ से आ रही है, लेकिन क्या पता डीप डाउन यहाँ से उधर जा रही हो। ये आपने इंट्रोस्पेक्ट करना है, दिस इज समथिंग ओनली यू कैन फाइंड बेटर। रही बात विक्टिम बिहेवियर की, तो भाई विक्टिम मेंटालिटी का कोई इलाज नहीं है। विक्टिम मेंटालिटी को बस फिर यही उनके उनके हाल पे छोड़ दें, क्योंकि उन्होंने हर जगह कुछ ना कुछ निकालना ही है। तो फिर कुछ लोग बहुत अनरीजनेबल हो जाते हैं, तो जब आप देखो उनके रीज़न नहीं हो सकता एक पॉइंट तक, तो जस्ट लीव देम बी। सो आई थिंक यहाँ पे मुद्दा यही बनता है कि आप चीज़ों को विड्रॉ करें, बाउंड्री सेट करें, बी असर्टिव इन योर टोन एंड बी वेरी क्लियर एंड कंसाइज कि भाई ये चीज़ें हैं, ये इस तरह नहीं होगा, दिस इज़ हाउ आई एम गोइंग टू डिसाइड, दिस इज़ हाउ आई एम गोइंग टू नेविगेट फ्रॉम नाउ ऑन, एंड अगर आप आधे रास्ते आना चाहते हैं ठीक है, नहीं तो ठीक है, माइंड योर बिजनेस, देन जस्ट लिव लाइक अ स्ट्रेंजर। जैसे आप हॉस्टल में रह रही हैं और आपकी मजबूरी है कि यार इस बंदे के साथ रहना पड़ रहा है बिकॉज हॉस्टल में प्लेसमेंट हुई हुई एंड यू कांट डू एनीथिंग अबाउट इट। आई होप थिंग्स गेट बेटर एंड ख्याल रखें, बट या इट्स अ वेरी जेन्युइन इशू, इट हैपन्स ऑल इन ऑलमोस्ट एवरी हाउस होल्ड for one reason or the other. It's a very very real thing and it can be very very toxic because इसमें मसला ये है कि एक तो होता है ना कि बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड टॉक्सिक है, कम से कम अपने अपने घर में तो है। यहाँ पे एक बंदा सामने ही है आपके, और सारा दिन और बचपन से, और पता नहीं जब तक शादियां नहीं होती
या मूव आउट नहीं होते तब तक वो आपके साथ नहीं है। तो ये एक बड़ा मुसीबत होती है, बिकॉज यू हैव टू लिव टुगेदर। सो आई होप थिंग्स गेट बेटर फॉर यू, एंड आई होप यू पास योर MD कैट का एग्जाम इंशाल्लाह। टेक केयर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और आप इसका पूरा वर्जन देखना चाहते हैं तो लिंक कमेंट सेक्शन में दिया गया है। हमारे YouTube चैनल पे पूरा वर्जन मौजूद है और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। शुक्रिया।